السلام علیکم۔ یہ ممتاز مفتی کی بک ہے الکھ نگری۔ اس میں سے پیج 291 پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پاگ والا بابا۔ تیسرا بابا جس سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا انہیں پاگ والا بابا کہتے تھے۔ اماں زبردستی مجھے ان کے پاس لے گئی تھی۔ یہ واقعہ 1925 کا ہے۔ بٹالے سے 10-12 میل دور بڑی سڑک پر ایک گاؤں ہے، جینتی پور۔ ایک بابا جس نے سر پر ایک اتنی بڑی پگڑی لپیٹ رکھی تھی، اپنی گٹھڑی اٹھائے جینتی پور کی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ 2-3 روز تک تو لوگ سمجھتے رہے کہ مسافر ہے، چلا جائے گا، لیکن چوتھے روز جینتی پور کے لوگ گھبرا گئے۔ وہ نمبردار کے پاس گئے، کہنے لگے مسجد میں ایک بابا آ بیٹھا ہے اور اس کا جانے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتی ہے، وہاں مستقل رہائش کر لینا ٹھیک بات نہیں۔ یہ سن کر نمبردار کو غصہ آ گیا۔ وہ سیدھا مسجد میں گیا، بابا کو ڈانٹا ڈپٹا اور اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا۔ بابا وہاں سے اٹھ کر بڑی سڑک پر ایک گھنے درخت کی چھاؤں تلے جا بیٹھا۔ اسی رات نمبردار کی ایک بھینس بلا وجہ مر گئی۔ اگلے دن دوسری بھینس بیمار پڑ گئی۔ نمبردار گھبرا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ بابا کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اس پر گاؤں والے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کی منتیں کی، بابا ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دے، بے شک تو مسجد میں ڈیرا کر لے یا تو چاہے تو ہم ایک مکان خالی کروا دیتے ہیں۔ بابا نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا، وہ خود سے باتیں کرنے میں لگا رہا، اکھڑی اکھڑی باتیں، بے معنی باتیں۔ وہ مایوس ہو کر واپس آئے تو پتہ چلا کہ نمبردار کی دوسری بھینس بھی مر چکی ہے۔ اس پر علاقے میں پاگ والے بابا کی دہشت پھیل گئی۔ بابا سارا دن درخت تلے ٹہل لگائے رکھتا اور خود سے باتیں کرتا رہتا۔ جب نماز کا وقت آتا تو قریبی کھیت میں جا کر نماز ادا کرتا اور پھر سے درخت تلے ٹہلنا شروع کر دیتا۔ کسی نے کبھی بابا کو لیٹے ہوئے یا سوئے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری زندگی کا وہ طوفان چل چکا تھا جس سے اماں خائف تھی، جس کے بارے میں حاجی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اتنی دھول اڑی تھی کہ ہم بگھوڑوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ ہم پناہ ڈھونڈتے رہے تھے اور محلے والے لاٹھیاں اٹھائے ہمیں تلاش کرتے رہتے تھے۔ اب وہ طوفان ختم ہو چکا تھا اور اپنے عقب میں بدنامی، اداسی اور ویرانی چھوڑ گیا تھا۔ جب ہم بابا کے ڈیرے پر پہنچے تو وہ کھیت میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اماں بھاگ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ بابا نے سلام پھیر کر پیچھے دیکھا، غصے میں بولا، تو نے اللہ سے بیعت کیا ہے کیا؟ کیا ہے بابا جی، اماں نے کہا۔ اچھا کیا، وہ بولا۔ اماں نے مجھے اشارہ کر کے قریب بلایا اور بابا سے کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے بابا جی۔ تیرا بیٹا ہے تو میں کیا کروں؟ اس کے لیے دعا کرے۔ میں دعا کرنے والا کون ہوں؟ وہ جانے، اس کا کام جانے، میں کون ہوں؟ اللہ اپنے کام آپ جانے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ اپنے کام آپ کرتا ہے، میں کون ہوں؟ آگے ایک ہیڈنگ ہے، کیا نہیں کیا یا کیا نہیں کیا۔ آپ اللہ والے ہیں نا، اماں نے کہا۔ بابا جوش میں اٹھ بیٹھا اور ہم دونوں کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہی کرتا ہے، پھر کون کرتا ہے؟ وہی جانے، اس کے کام ہے، وہی جانے، میں کون ہوں؟ دیر تک بابا بولتا رہا اور ہم دونوں کے گرد چکر لگاتا رہا۔ بالآخر وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ کیا نہیں کیا، بولو کیا نہیں کیا، بولو کیا نہیں کیا۔ جب یہ امرتسر میں چھپا بیٹھا تھا اور وہ لاٹھیاں اٹھائے ڈھونڈ رہے تھے، اللہ نے اس کا منہ کالا کر دیا کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور انہوں نے نہ پہچانا اور آگے
लम गए, किया नहीं किया, किया नहीं किया। वो फिर चक्कर काटने लगा, वो मेरे पास आकर फिर रुक गया। किया नहीं किया अल्लाह ने। बोलो, जदिया साहिवाल में था तो शाह जी ने उसे पनाह दी, नहीं दी। बोलो, किया नहीं किया अल्लाह ने, किया नहीं किया। फिर चक्कर काटने लगा, मेरे पास आकर फिर रुका। जदिया बानपुरा में छुपा हुआ था तो सूफी साहब ने इसे हिफाजत में लिया, नहीं लिया। क्या? बोलो, क्या नहीं किया अल्लाह ने। कसूर में शाह जी ने खुद हिफाजत की, नहीं की। बोलो, कहते हैं नहीं किया, नहीं किया तो चलो नहीं किया, सब उसकी मर्जी है, करे या ना करे, कोई जोर है इस पर। मैं हैरत से बाबा की तरफ देख रहा था, वो हर उस शहर का नाम लिए जा रहा था जहां हम भगोड़ों ने पनाह ली थी। ये कैसे जानता है कि अमर कसर में मेरा मुंह काला कर दिया गया था, मेरे मुंह पर एक्जिमा निकल आया था, फंसियों से पीप और पानी रस रहा था। जराह ने कपड़ा जलाकर मेरे मुंह पर थोक दिया था। लाठियां वाले दरबार मेरे सामने से गुजर गए। लाठियां वाले 2 बार मेरे सामने से गुजर गए थे, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। इसको कैसे पता चला कि मैं साहिवाल बागबानपुरे और कसूर में छुपा रहा था। बाबा हमारे गिर्द घूम रहा था, अम्मा चुपचाप बैठी थी। सड़कों पर लोग खड़े हमें देख रहे थे, क्योंकि बाबा कभी किसी को पास आने नहीं देता था। बाबा फिर से मेरे सर पर आ खड़ा हुआ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं? दिल्ली में इस बुढ़े ने कहा था अल्लाह से ब्याह कर लो, उसने कहा नहीं था, इसने कहा नहीं करता, फिर मैं कौन हूं? बोलो, इसका नामा लिखा हुआ है, वक्त वक्त की बात है, वो लाल टोपी और लंबा, इसे ठीक कर देंगे, मैं क्या करूं? जाओ जाओ, जाते क्यों नहीं हो? बाबा ने गुस्से में कहा, इधर जिधर पहाड़ियां हैं जाओ, वहां जाओ जहां तुम्हारा नामा है। आगे हेडिंग है इंसान और बुजुर्ग। घर पहुंचकर 4 दिन तो मुझ पर पाक बाबा की बातों का शिद्दत से असर रहा, फिर वो मध्यम पड़ता गया। मेरी अक्ल दानिश फिर से लौट आई। हाजी साहब के किरदार का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वाह, क्या खूब इंसान है, किस कदर वुसअत कल्ब है, किसी बात का बुरा नहीं मानते, किसी बात पर आज़ुर्दा नहीं होते, किसी बात पर सरजनिश नहीं करते, नसीहत नहीं करते। लेकिन मेरी दानिश में ये औसाफ तो एक अच्छे इंसान के औसाफ थे। मेरी दानिश में बुजुर्ग वो था जो आम इंसान से मुख्तलिफ हो, जो माफोकुल फितरत कुव्वतों का हामिल हो, जो होने वाली बात को पहले ही से जानता हो और इंसान की तकदीर बदलने की कुव्वत रखता हो। मुझे ऐसी शोबदाबाजी से कोई दिलचस्पी न थी। इन दिनों तो मैं अक्लो खिर्द का दीवाना था और मजहब को बुनियादी तौर पर एक तअस्सुब समझता था। आगे हेडिंग है सरकार किबला। अजीज मलिक को मैं एक अदीब और आलिम आदमी की हैसियत से जानता था। मुझे मालूम न था कि वो 25 बरस एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी देता रहा है। चंद एक रोज के बाद मलिक मुझसे फिर मिला, कहने लगा, मैंने आपके बारे में इन बुजुर्ग से तज़किरा किया था, उन्होंने फरमाया है कि हम तो इस लायक नहीं कि दुआ के लिए हाथ उठाएं, बेहतर यही है कि आप अपने दोस्त को सरकार किबला की खिदमत में ले जाएं और उनसे कहें कि वो खुद उनकी खिदमत में दुआ के लिए गुजारिश करें। ये सब बातें मेरे लिए बेमानी थी, मैं इनके मफहूम से नाआशना था, लेकिन अजीज मलिक के हुस्न अखलाक और जज्बे हमदर्दी की वजह से मैंने इसके साथ जाना कबूल किया। मलिक ने कहा, मैं जुम्मा के रोज आऊँगा, आप तैयार रहिएगा ताकि मैं आपको सरकार किबला की खिदमत में ले जाऊँ। जुम्मा के रोज अजीज मलिक आ गया और हम दोनों चल पड़े। चलते चलते हम मरीड़ जा पहुंचे। आगे हेडिंग है दुआ। मरीड़ रावलपिंडी सदर का एक मुजाफ है। इन दिनों मरी रोड से मरीड़ तक एक वीराना था। इस वीराने में खेत भी थे,
बहरहाल उन दिनों वहां कोई आबादी न थी। रेल की पटड़ी पार करने के बाद एक छोटा सा गांव था जिसके अकब में कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में एक छोटा सा चौगान था जिसके एक जानिब कुआं था। चौगान के गिर्द खारदार तार लगी हुई थी। एक तरफ एक पुख्ता थड़ा बना हुआ था, दूसरी तरफ एक छोटी सी चारदीवारी थी जिसमें एक खिड़की खुलती थी। जब मैं इस खिड़की में दाखिल हुआ तो मैं घबरा गया। मैं समझा था कि सरकार किबला किसी फर्द का नाम है जिसकी खिदमत में मुझे ले जाया जा रहा है। किसी कब्र पर दुआ करने के लिए जाना मेरे लिए नाकाबिल कबूल बात थी। किसी बुजुर्ग से दुआ कराने में फिर भी कोई बात थी, लेकिन किसी कब्र से मुखातिब होना, किसी मरहूम व मगफूर को दुआ के लिए कहना मेरी दानिश में एक मजाका खेज बात थी। अगर मुझ में जुर्रत होती तो मैं अजीज मलिक से कहता, मलिक तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अदीब हो, साहिब अक्ल दानिश व दानिश हो, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अब मैं इस मट्टी के ढेर से क्या कहूँ? कैसे दरख्वास्त करूँ कि दुआ करो? यार मलिक क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लेकिन मुझ में जुर्रत न थी। मजबूरन मैं मलिक के पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। अंदर सफेद टाइलों का फर्श बिछा हुआ था। कब्र पर एक पत्थर इस्तादा था जिस पर जली अल्फाज में लिखा था, साईं अल्लाह बख्श नक्शबंदी कलंदरी, और पता नहीं क्या क्या। न मुझे नक्शबंदी के मफहूम का इल्म था न कलंदरी का। मेरे लिए सारी बात ही मुहम्मल थी। मलिक साहब ने दोनों हाथ उठाए, कुछ पढ़ता रहा, फिर फारिग होकर बोला, मुफ्ती साहब आपको कोई आयत आती है क्या? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्द कहने लगा और दुरूद शरीफ भी। मैंने सर असबात में हिला दिया और अपनी गुजारिश पेश कर दी। ये गुजारिश न थी, मिन्नत न थी, इल्तिजा न थी। जब सामने काबिल एहतराम हस्ती के वजूद का एहसास ही ना हो तो मिन्नत कैसी, इल्तिजा कैसी? इस सारे अमल में न जहन शामिल हुआ न दिल। जुबान ने भी एक रस्म अदा कर दी। चार दीवारी से बाहर निकलकर मैंने सिद्के दिल से कहा, शुक्र है जान छूटी। मलिक सदर में रहता था, मैं शहर में। हमारे रास्ते अलग अलग थे, इसलिए मलिक ने खुदा हाफिज कहा और रुखसत हो गया। 6-7 दिन गुजर गए। पहले चंद एक दिन तो जब भी मुझे ये बात याद आती मैं अपनी हमाकत पर नदामत महसूस करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस वाक़े को भूल गया। आगे हेडिंग है जुम्मा की छुट्टी। 6-1 दिन के बाद मलिक फिर आ गया, मुस्तरिब सा था। बोला, मुफ्ती साहब हमसे एक गलती सरजद हो गई है। वो क्या? मैंने पूछा। कहने लगा, मैं भाईजान से मिला था। कौन भाईजान? मैंने पूछा। वही बुजुर्ग जिन्होंने हमें दुआ के लिए साईं अल्लाह बख्श के मिज़ार पर भेजा था। मेरे दिल में चिड़चिड़ होने लगी। अपनी ज़ईफुल इतिकादी पर गुस्सा आने लगा। पता नहीं अब ये क्या तोता मैना कहानी सुनाएगा। मैंने सोचा जी। मैंने कहा, क्या गलती हुई? हमने सरकार किबला के मिज़ार पर जुम्मा के रोज़ हाजिरी दी। भाईजान फरमाते हैं कि साहिब मिज़ार जुम्मा के रोज़ अपने मिज़ार पर मौजूद नहीं होते। ये सुनकर मेरा जी चाहा कि कह का मार कर हंस दूं। क्या खूब, साहिब मिज़ार अपने मिज़ार पर मौजूद नहीं होते। मैंने हैरत से मलिक की तरफ देखा। बज़ाहिर इस कदर माकूल, लेकिन ये बातिल इस कदर मजबूर। मलिक बोला, भाईजान फरमाते हैं कि एक बार फिर सरकार किबला के मिज़ार पर हाजिरी दो। माय गॉड, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरा जी चाहता था कि मलिक से साफ साफ कह दूं, बस मलिक साहब अब मुझे और ना बनाओ, बहुत हो लिया, मुझे किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो होता है होने दो। मैंने गुस्से में सर उठाकर मलिक की तरफ देखा। मलिक की शख्सियत इस कदर संजीदा और पुरवकार है कि इससे बात करना मुमकिन नहीं। मैं इसे कुछ कह न सका। इसके बावजूद मेरे अंदर घुटने नाच रहे थे। साहिब मिज़ार अपने मिज़ार पर हाजिर नहीं होता, जुम्मा के दिन छुट्टी करता है, दरख्वास्तें वसूल नहीं करता। लाहौल वाला मट्टी के तोदे तले दबा हुआ सरकार किबला। अंदर एक हंगामा मचा हुआ था। बर्ट्रैंड रसल मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा न था, शक करो, हर बात पर शक करो। स्पेक्टिसिज्म ज़ईफुल एतिकादी के खिलाफ बेहतरीन हथियार है। हक्सले सर थामे बैठा था। फ्रॉइड गहरी सोच में पड़ा था।
मार्क्स घोंसा ताने खड़ा था। चंद रोज के बाद मलिक फिर आ गया, बोला अगर बारे खातिर ना हो तो चलिए सरकार की बला की हाजिरी दे आए। मैं चुपचाप मलिक के पीछे पीछे चल पड़ा। यूं महसूस कर रहा था जैसे कुर्बानी का बकरा तबीयत गमो गुस्सा से भरी हुई। इस रोज मुझे साईं अल्लाह बख्श का मिजाज यूं लग रहा था जैसे मदारी कर दे रहा। मैंने तमस्खर आमेज अंदाज में अलहम्द पढ़ी, दुरूद पढ़ा, गैर दुआया अंदाज में दुआ की, यूं जैसे कोई किसी का मजाक उड़ाता है। चार दीवारी से बाहर निकलकर मैंने सच्चे दिल से लाहौल पढ़ा, चलो जान छूटी। मलिक इस कार खैर की तकमील पर बहुत खुश था। उसकी खुशी पर मुझे हैरत हो रही थी। मलिक ने मुझे खुदा हाफिज का और सदर की जानिब चल पड़ा। वहां से मेरा घर एक आध मील के फासले पर था। मरीड़ गांव के सामने रेलवे लाइन की पटड़ी थी। पटड़ी के आगे मरी रोड तक या तो खेत थे और या खाली जमीन पड़ी थी। रिक्कत, ये इस चैप्टर के आखिरी है हेडिंग रिक्कत। जो ही मैं खेतों में दाखिल हुआ मेरे अंदर एक मनहानी सी चली। सोडे की एक बोतल खुल गई, बुलबुले उभरते गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे मेरे अंदर फफूंदियां हवा में उड़ी और मैं फूट फूट कर भें भें रोने लगा। पता नहीं कितनी देर तक मैं वहां खड़ा भें भें करके बाआवाज बुलंद रोता रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने घबरा कर चारों तरफ देखा कि किसी ने देख तो नहीं लिया। कुर्बो जवार में कोई न था। फिर मैं हैरत में डूब गया। माय गॉड, ये क्या हुआ? जिंदगी भर में सिर्फ एक मर्तबा रोया था। ये इन दिनों की बात है जब मैं जज्बात के थपेड़े खा रहा था। तबन मैं रोने से कतई तौर पर महरूम हूँ। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए। बड़े से बड़े सदमे पर भी मुझे रोना नहीं आता। दुख की बात सुनकर मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे धचका नहीं लगता, शौक नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुख बूंद बूंद मेरे दिल में गिरता रहता है। इस रोज बगैर वजह के बेख्तियार भें भें करके रोने पर मैं बौखला गया। बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरे दिल में ये वहम भी न आया था कि शायद इस अमल को साहिब मिजाज से कोई ताल्लुक हो। खैर, मैंने खुद को संभाला, आंसू पूछे, मुंह साफ किया और आगे चल पड़ा। अभी चंद एक कदम ही चला था कि वही है जान उभरा। सोडे की बोतल खुली, बुलबुलों का एक तूफान उभरा। मैं बैठ गया, बाजुओं से अपना सर छुपा लिया, खुद को संभालने की शिद्दत से कोशिश की, लेकिन इस वक्त गोया मैं न था। मेरी मैं दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक सोचने वाला मैं, एक बेख्तियार मैं। सोचने वाला हैरान खड़ा था कि ये क्या हो रहा है। उसे खुद पर इख्तियार न रहा था। वो बेबस लाचार खड़ा था। माय गॉड। इस आध मील के फासले के दौरान मुझ पर 3 दौरे पड़े। सोचने वाला मैं सच होकर रह गया। वो यूं देख रहा था जैसे कोई अजनबी हो, बेबसी से चूर, खौफो हरास से अदब हुआ। इसके बाद बड़ी रोड आ गई। लोग चल फिर रहे थे, तांगे सवारियों की तलाश में चक्कर लगा रहे थे। मुझ पर खौफ तारी हो गया। लोग देखकर क्या कहेंगे? अगर किसी वाकिफ कार ने देख लिया तो? मैंने मफलर से मुंह सर लपेट लिया ताकि कोई पहचान न सके और भागना शुरू कर दिया। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। चौक में लोग हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। कॉलेज रोड पर लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे, कुछ तमस्खुर से हंस रहे थे। घर के दरवाजे पर मैंने खुद को अच्छी तरह से संभाला, मुंह पोंछा, आंखें साफ की, चेहरे पर संजीदगी सजाई और अंदर दाखिल हो गया। मैं सख्त खौफजदा था। अगर घर में दौरा पड़ गया तो? दौरे से नहीं, मैं अपनी बीवी से डरता था। मेरी बीवी एमनाबाद के शौकों में से है। वो सब नो मुस्लिम हैं। उन्हें बुत परस्ती किसी सूरत में गवारा नहीं। लिहाजा न वो पीर को मानते हैं, न फकीर को, न मिजार को, न मोजज़ात को, न कश्फ को। वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, कुरान के अहकामात को मानते हैं और बस। इनका बस चले तो पैगंबरों को भी बंदे से ज्यादा हैसियत देने से इनकार कर दें। मैं किसी बुजुर्ग बाबा की बात करूं तो मेरी बीवी के चेहरे पर तमस्कुर भरी मुस्कुराहट फैल जाती है। इस मुस्कुराहट में काट होती है। इस काट की धार बहुत तेज होती है। मैं इस मुस्कुराहट से डरता हूँ।
پہلے ہی وہ میرا مذاق اڑایا کرتی تھی، چونکہ میں باڑہ سینٹر والے بابا کے ہاں جایا کرتا تھا. تھینک یو ویری مچ.